Good evening, friends. I would request everyone to mute themselves first, and so people can sound better. A warm welcome to everyone who has joined today on this very auspicious occasion of Navratri. A very warm welcome from the Wellness ARC. ARC stands for Anahat Rejuvenation Center. Wellness Program. And I'm Dr. Geeta Shah. And we have a very special guest today, Vyas, going to be talking about the power of music. I would request everyone again to please mute themselves. And the topic today is music. The subject very close to my heart. Music has a effect. It's a part of and an integral part of so many civilizations and cultures all over the world. But I feel Indian classical music is really evolved, as they say, because it can really bring us to the divinity, to our essence. And जैसे कहते हैं पर की साधना परमेश्वर की साधना. Music has so many healing. It can calm us down. It can lower the stress volume, our stress levels, our stress hormones. And I would again request everyone to please mute themselves. Thank you so much. And we have a young budding musician here also, Varun, who is going to play. And before that, let's start with a prayer, an invocation to Ma Durga, this being Navratri, and then we'll have a small flute, short presentation by Varun, and then we'll invite Madam Vyas to give her talk on the healing effects of and along with Ayurveda. We'll start with small prayer. Mangale Shive Sarva Sharanye Namaste Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute. Have Varun will play, talk about his journey with music on security. Sketch. 2-3 participants. Okay, everybody. There it is, huh? I'm going to play a small tune in Rag Khamaj, Mishra Khamaj, where I've fused two rags that I consider a powerful healing in this particular phase of time. When things are topsy-turvy, running around, loud music, brash, and also in that we have to realize that to accept that all that is also a part of our life, not just quiet peace, which is related to healing. That's why I'm going to play this small tune in Rag Khamaj.
You can continue with your whatever. Thank you. या फैन बंद कर आवाज नहीं आता है Can you hear me? Can you hear me? Just give a thumbs up if you can. जो चीजें भगवान ने सर्जन की सर्जन के केवल पिता एक जगह सर्जन है मनुष्य है जीव जंतु प्राणी पशु सब है हम लोग केवल मनुष्य की बात Thank you. That was very nice, Varun, very soothing and pleasant, and just right to bring about the right ambiance and the right mood. So now it gives me great pleasure to invite very special guest, Jarna Ben Vyas, who I've known for about 5 years or so. I've been learning music from her, and
was very, very special. Though up till now it has not been so frequent, but thanks to the lockdown, because of the online, we are having more frequent online classes. And it's a great pleasure to invite her. And she's a very versatile, accomplished, renowned singer, um, and very comfortable in all forms of music and singing. And she has done her masters in music, and she's born and brought up in Manipur. And she's trained under a lot of stalwarts like Prabha Atre in Indian classical music, and Purushottam Jalota, Purushottam Upadhyay, some very noted Gujarati singers. And she's been awarded and she's also a trained music therapist with this, along with the stream of Ayurveda, which is very interesting. And she's also got an award for as a best in the Women's Day for her contribution in Gujarati music, so being a non-Gujarati. And she's married to Vijay Dutt Vyas, who's also a very brilliant percussionist and who supports her ably. And Jarna Ben is going to talk about the healing effects of music. And as I said, Indian classical music and rag-based music are extremely evolved in I think, in the entire world. And the way that can bring us closer to divinity, no other music system can. Though lots of music, all over the world, they've been, healing. Say, if you see the Aboriginal tribes in Australia with their didgeridoo, and the African drums, and the shaman tribes, and the flutes of the Native Americans. So let's, it's over to Jarnaben now. Namaskar. I'm audible? Yes. Thank you so much, Geeta ji, to organize such a good event today. And during the lockdown, everybody needed this. And thank you all the viewers. आज हम म्यूजिक थेरेपी के बारे में बातें करना है और तो इंफॉर्मेशन शेयर करना है मुझे आप लोगों को। ऐसे तो थेरेपी अब इस तरह से दे नहीं सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा एंटरटेनिंग के लिए थोड़े सॉन्ग्स भी मैं गाऊंगी और इंफॉर्मेशंस भी मैं देती रहूंगी आप लोगों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद अ प्रेयर। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा
सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि म्यूजिक थेरेपी एक सपोर्टिव थेरेपी, प्रिवेंटिव और कॉम्प्लीमेंटरी ऑल्टरनेटिव थेरेपी के माध्यम से उसकी तरह यूज करते हैं। ये प्रिवेंटिव जब होता है जब इंसान को कोई तरह की बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो भी म्यूजिक थेरेपी यूज कर सकते हैं और आपकी रिजुमिनेट होने में हेल्प करता है, हेल्थ को अच्छी तरह से सस्टेन रहने में भी हेल्प करता है। और सपोर्टिव और कॉम्प्लीमेंट्री तभी होता है जब किसी को ऑलरेडी कुछ तकलीफ है और उसका मेडिकेशन चल रहे हैं, तो भी म्यूजिक थेरेपी एज ए सपोर्ट आप यूज कर सकते हैं और इससे आपके जो भी हीलिंग प्रोसेस है उसमें हेल्प मिलती है, जल्दी फास्ट रिकवरी के लिए हेल्प होता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता। इसके लिए कोई भी तरह का दवा वगैरह आप ले रहे हैं, दूसरा भी कोई थेरेपी ले रहे हैं, उसके साथ साथ म्यूजिक थेरेपी का भी उपयोग कर सकते हैं। और ऑल्टरनेटिव और क्यूरेटिव थेरेपी सर्टेन एलिमेंट्स या तो सर्टेन प्रॉब्लम्स लाइक से स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को नींद की प्रॉब्लम है जैसे, और माइग्रेन प्रॉब्लम है, नॉर्मल हेडेक वगैरह जो पेन रिलीफ के लिए भी इसको ऑल्टरनेटिव थेरेपी के जैसे आप यूज़ कर सकते हैं और उसका काफ़ी फ़ायदा हमने देखा भी है लोगों को। जैसे डिप्रेशन होते हैं, किसी को मूड स्विंग होते हैं, तो इसमें म्यूज़िक थेरेपी का काफ़ी मदद होता है। और ऐसे भी जो भी संगीत करते हैं जैसे बजाना, गाना बजाना या तो खुद गाना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, वो दोनों में ऐसा है कि लाइफ में एक डिसिप्लिन अपने आप में आता है। सो जो डिसिप्लिन लाइफ जीता है उसको साइकोसोमेटिक डिजीजेस जो है उससे थोड़ा कम उसका असर कम होते हैं और आपकी लाइफस्टाइल अपने आप में ही अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं और इम्प्रूव होते हैं। इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन द लाइफ एंड इट आल्सो एलिवेट्स योर मूड। जब आप प्रैक्टिस करते हैं या तो किसी को सुनते हैं तो उसमें आपकी मूड को चेंज अच्छी तरह से उसको एलिवेट करता है और आपके इंटेलेक्ट को भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। जैसे बच्चों को भी हम म्यूज़िक के थ्रू कोई सिखाते हैं कोई भी चीज़, तो वो जल्दी से एब्सॉर्ब कर पाता है और उसको सस्टेन भी कर पाते हैं, मन में उसको ज़्यादा टाइम तक उसको मेमोरी में रहता है। इसीलिए हम सब ने देखा है कि नर्सरी राइम्स वगैरह जो है वो कैसे ट्यून में बना के उनको सिखाते हैं, गवाते हैं। और जो खुद में जो साधना करता हो, को संगीत की साधना करता हो, उसको तो ये अपने आप ही नॉर्मल वे में हो जाता है और आपकी माइंड, बॉडी, सोल को अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं। इसके लिए इमोशन को बैलेंस करने में और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी म्यूजिक बहुत, जैसे डॉक्टर गीता जी ने बोला कि स्पिरिचुअलिटी को अगर किसी को पाना है तो उसमें म्यूजिक का भी बहुत बड़ी योगदान होता है। और म्यूजिक में सबसे पहले तो वी डील विद द साउंड। तो कोई भी प्रकार का साउंड जो हम सुनाई देते हैं वो हर एक चीज तो म्यूजिकल साउंड नहीं होते हैं।
तो some sounds are non-musical, some are musical sound. So we are going to deal with only musical sound. और musical sound को हम ये मानते हैं कि it is the most positive sound. इसके लिए हर एक सुर को भी आप इंडिविजुअली उसको आप प्रैक्टिस करते हैं या तो उसको सुनते हैं, सस्टेन करते हैं रोज के इसमें। जैसे हम योगा में भी ओमकार करते हैं, तो ओम की कोई दूसरा कोई मीनिंग उसमें नहीं होता है, लेकिन ओमकार जब भी हम जाप करते हैं तो उसकी एक वाइब्रेशन हमको अलग ही तरह से और आपको अलग फीलिंग उसका आता है। आप 2-3 बार भी चैंट करें तो संगीत में तो ओमकार की साधना हमेशा शुरुआत से ही रहा है। और उसको आप गाते गाते हम लोग क्या होता है कि प्रैक्टिकली आप गाते हैं तभी आपको लगता है जो ऑडिबल साउंड है वही आपको ऐसा लगता है यही संगीत है। सो संगीत में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है इनऑडिबल साउंड विच इज कॉल्ड अनाहत नाद। अनाहत नाद जो जैसे आपने भी अपने क्लिनिक का नाम अनाहत रखा है। सो अनाहत नाद इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन म्यूजिक एंड ये जो हम साधना करते हैं तो वो अनाहत को ही जागृत करते हैं। अनाहत नाद इज द साउंड विच इज विद इन यू और वी ऑल्सो कॉल इट अनस्ट्रक साउंड। सो अनस्ट्रक साउंड जब बोलते हैं तो आपके अंदर आपके भीतर ये नाद जो है वो रहता है। और ऐसे कहते हैं कि जो योगीज है और जो वेरी हाई लेवल में जो मेडिटेट करते हैं उनको ये अंदर की नाद सुनाई देते हैं। सिमिलरली दोज हु आर singing or who are doing music, they can feel that sound from within. Only when you feel that real sound from within, one can sing without the help of any other instruments. So this is what we always try to get it when you practice. So इसीलिए एक जब सीखते हैं तो हमेशा कहते हैं कि आपको घर में अकेले से प्रैक्टिस करना चाहिए, because when you want to really feel that yourself, you have to be left alone and you have to try to get into yourself. So music is one kind of getting introvert, जो हम जब सुनते हैं तो हमें लगता है बाहर का ही आवाज सुनाई देता है, लेकिन आहत नाद जो सुनाई देता है उससे आहत नाद को ऑडिबल साउंड को हम आहत नाद बोलते हैं। इन ऑडिबल साउंड इज कॉल्ड अनाहत नाद। सो आहत में से अनाहत में जाना और अनाहत से आहत को वापस रिप्रोड्यूस करना, ये एक सीखने की प्रोसेस है। और जब हम गाना बजाते हैं तभी भी पहले हम खुद अंदर से वो नाद को फील करते हैं, वो साउंड को फील करते हैं, फिर बाद में ही आप उसको बाहर सुना सकते हैं। और ये इंडियन कल्चर में तो म्यूजिक जो है वो वेदा के टाइम से वैदिक पीरियड से ही इवॉल्व हुए हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेदा ऐसे मानते हैं। तो वो जमाने में क्या होता था कि ओनली चैंटिंग, पहले तो चैंटिंग चलते थे, अभी मंत्र जाप होता है, मंत्र का चैंट्स होता है, हाइम्स होते हैं, तो वो सभी चैंटिंग जब होता था तभी बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सुर को लेके प्रैक्टिस या तो उसका ही चैंटिंग हुआ करता था और उसी के ऊपर साधना होते थे। तो उसको साधना करते करते ड्यूरिंग सामवेद के टाइम में पूरा सप्तक जो हम इसको सारे गमा पधा निसा, जिसको जिन्होंने म्यूजिक नहीं सीखे हैं उनके लिए कह रही हूँ, सारे गमा पधा निसा जो स्केल म्यूजिक उसको वेस्टर्न में स्केल बोलते हैं, हम लोग इसको सप्तक कहते हैं। तो सप्तक की डेवलपमेंट तभी हुआ और एक सिस्टमेटिक वे में रागों का कंपाइलेशन हुआ कि कौन कौन सा सुर कब कहाँ पे लगेगा तो कौन सा राग बनेगी, फिर हर एक राग की एक फॉर्म किस तरह से होना चाहिए और देयर इज अ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू परफॉर्म अ रागा। तो ये सभी चीजें जो है वो बहुत ही साइंटिफिकली ध्यान रखा गया है। जो भी हमें तो बना बनाया ही सब कुछ मिल गया है, लेकिन मुनि ऋषियों ने उसके ऊपर बहुत तप किया हुआ है, बहुत कुछ उन्होंने साधना उसके ऊपर करके जो भी उससे तत्व जो है उसका पॉजिटिवनेस है वो जानने के बाद ही हमारे लिए वो छोड़ गए हैं और हमें उसके उपयोग करने के लिए तो हमें तो बना बनाए ही सब कंपोजिशंस मिल गए हैं और हम उसको यूज करते हैं। और संगीत में 3 तरह की जो गायन,
वादन और नृत्य, ये तीनों फॉर्म ऑफ आर्ट है, इसकी कंबाइन जो ये फॉर्म है उसको हम संगीत कहते हैं। जब हम संगीत कहते हैं तो सिर्फ गाना नहीं होता है, सिर्फ बजाना नहीं होता है, गायन, वादन और नृत्य, ये तीन जो फॉर्म है उसकी कंबाइन को हम संगीत कहते हैं। तो इसी से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जैसा मैंने पहले बोला कि मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। सो फिजिकली डांसिंग को आप जोड़ सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट जब बजाते हैं सो इट इज अ काइंड ऑफ रिदम, और फिर सिंगिंग इज द इमोशंस। सो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप पूरा उसको तीनों प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। जब आपको गाना हो तो आपको रिदम भी पता होना चाहिए, आप बजाते हैं तो सुर भी पता होनी चाहिए। इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, एंड व्हेन यू नो दिस टू, यू नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। सो दैट इज द फॉर्म ऑफ वे ऑफ डांस। सो डांस हम भले नहीं करते, लेकिन भाव जो हम कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि भाव कैसे निकालें उसको। तो यू हैव टू रियली फील एंड स्टार्ट विजुअलाइजिंग थिंग्स विच यू आर, बिकॉज म्यूजिक में सिर्फ इमेजिनेशन से हम गाते हैं। सो आपकी इमेजिनेशन कैसे कंप्लीट होगा व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग विद इन। तो ये सभी अलग अलग फॉर्म्स इसको कंबाइन करके ये तीनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए हमारे विचार चलती है, और उसको गाया जाता है या तो बजाया जाता है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट थिंग है कि म्यूजिक थेरेपी को कैसे यूज करना चाहिए। सो कैसे यूज करना चाहिए, इसमें ज्यादा करके तो जब हम थेरेपी के जैसे यूज करते हैं, जब ये आज तो हम सिर्फ गाने वाले हैं और सुनने वाले हैं सिर्फ, कोई, क्योंकि हर एक को कुछ ना कुछ अलग प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, क्या है जानने के लिए आए हैं। सो वी कैन नॉट गो लाइक ट्रीटमेंट सिस्टमेटिक, वो सही तो नहीं जा सकते हैं। इसके लिए मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जिनको जो भी प्रॉब्लम है वो पहले तो हमको डायग्नोस करना पड़ता है, आपको क्या प्रॉब्लम है और कितना प्रॉब्लम है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, क्या बीमारी कितना टाइम से चल रहे हैं, और आप क्या दवा ले रहे हैं या तो किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं। उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर पर्सन है उनको किस तरह की म्यूजिक सुनाना चाहिए, कितने टाइम सुनाना चाहिए, और कब सुनाना चाहिए, और कैसे सुनाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू रियली वांट टू बेनिफिट बाय यूजिंग म्यूजिक थेरेपी। सो आजकल बहुत सारे अलग अलग तरह से लोग म्यूजिक थेरेपी को यूज करते हैं। लाइक सिर्फ म्यूजिक सुन लो, कोई भी तरह का म्यूजिक सुन लो, जैसे ऐसे किसी ने बोला कि ये राग, तो ये राग में बेस किया हुआ कोई भी गाना सुन रहे हैं तो आपको उसका असर होगा कि नहीं होगा। ये भी एक सबके क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं कोई भी राग का, मतलब जैसे बोले कि यमन में, तो यमन का कोई भी गाना सुन लूं, फिल्मी सॉन्ग सुन लूं, तो भी मुझे उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सो एक्चुअली जब हम ट्रीटमेंट के हिसाब से इसको यूज करते हैं तभी शब्द की यूसेस मिनिमम होता है, मिनिमम यूसेस ऑफ वर्ड्स, बिकॉज वर्ड्स कैन कन्वे अदर मीनिंग। तो आपकी सुर का जो, सुर से जो आपको एलिवेट करना चाहते हैं, या तो आपको आपके एनर्जी को इम्प्रूव करना है या इसको रिड्यूस करना है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो सिर्फ आपको सुर की जो प्लेन उसकी जो वाइब्रेशन है वही जाना चाहिए। जब शब्द आ जाता है तो इंसान की माइंड दूसरी तरह से काम करने लगता है और आप उसमें नहीं रहते हो जहाँ होना चाहिए। तो इसी तरह से वो डाइल्यूट हो जाता है, उसकी जो इम्पोर्टेंट जो उसकी तत्व है, उसकी जो क्या बोलेंगे क्वालिटी जो है, वो डाइल्यूट हो जाते हैं जब शब्द आते हैं और रिदम आता है। तो रिदम भी कहाँ पे यूज करना, कौन सा प्रॉब्लम के लिए और क्या ट्रीटमेंट के लेवल में रिदम को यूज करना है और नहीं करना है, वो भी डिसाइड करते हैं आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, उसको जानने के बाद ही। और म्यूजिक थेरेपी के लिए जब सुनते हैं तो इंडियन राग, इसे हम सब जानते हैं कि इसमें हर राग की गाने की समय होते, वो कौन सा टाइम पे गाया जाता है,
और कौन सा टाइम पे बजाया जाता है, ये हमेशा हर एक राग में फिक्स किया हुआ है। सो जब हम राग सीखते हैं तो राग का वर्णन होते हैं कि कौन सा राग कैसे बना है, कौन सा थाट से बना है और कौन सा टाइम पे गाना चाहिए, उसकी रस क्या है, बिकॉज इट हैज इमोशंस। तो रस जो है वो ओनली इसमें नहीं होते, रागों में नहीं होता है, इट हैज इवन इन द स्वर, इंडिविजुअल स्वर भी जब होते हैं। जब मैं आपको एक ये दिखाती हूँ, देखिए, इमोशनल एट्रीब्यूट ऑफ ईच नोट। सो हर एक सुर की अपने खुद की इंडिविजुअल नेचर है, उसकी कैरेक्टर है। सो उसको जब हम दूसरे सुर के साथ मिक्स करके जब यूज करते हैं तो उसको कहाँ किसके साथ मिलाने से कितना डाइल्यूट होता है, वो कितना चेंज होता है। लाइक व्हेन यू mingle with different people, maybe you can also feel yourself changing somewhere here and there। तो इसी तरह से हर एक जो शब्द है, मतलब सारे गामा पा धनी सा जो भी है, तो उसका हमारे पास 12 सुर है। इंडियन म्यूजिक में भी से देयर आर 12 स्वरस विच आर कोमल, तीव्र एंड शुद्ध। ये 3 प्रकार के स्वर है। ये स्वरों को अलग अलग रागों में अलग अलग उनकी जो क्वांटिटी में उसको यूज किया जाता है। इसके लिए रागों की वर्णन जब दिया जाता है तो वादी संवादी इसका महत्व है, और साथ साथ में उसकी पकड़ कि कौन सा ग्रुप को ज्यादा यूज करना। पहले तो कौन सा सुर कितना इंपॉर्टेंट है, फिर कौन सा ग्रुप और किस तरह से जाना जरूरी है। इसके लिए आरोह और अवरोह का भी एक्सप्लेनेशन है उसमें। आरोह में आप इस प्रकार से जा सकते हो, अवरोह में आप इस तरह से आ सकते हो। इस तरह से हर एक राग की एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको पहले सीखा और उसके बाद उसको फॉलो कैसे करना वो सीखना पड़ता है, उसके बाद ही परफॉर्म किया जाता है और गाया जाता है। तो अभी ये जो मैं कह रही हूँ इसमें जब हम एंटरटेनमेंट म्यूजिक के हिसाब से सुनते हैं तो इसमें बहुत कुछ और ज्यादा काम होते हैं। बिकॉज एंटरटेनमेंट म्यूजिक में सिर्फ रागों की जो ये है स्वर की जो है उसको ही छोड़ के हम लिरिक्स को भी गाते हैं। बिकॉज आप क्लासिकल भी गाते हैं तो कम से कम स्वर गाते हुए शब्द गाते हुए भी छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक ऑल्सो। तो उसमें अलग अलग जो कंपोजिशन जो आप यूज कर रहे हैं वो लिरिक्स है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कंपोजिशन को इस तरह से बनाया जाता है। सो दैट इज टोटली फॉर द एंटरटेनमेंट म्यूजिक। बट व्हेन यू आर यूजिंग फॉर सर्टेन एलिमेंट टू ट्रीट, देन उसकी सिंगिंग के जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग होते हैं। कौन सा प्रॉब्लम के लिए हमको कौन सा सुर में ज्यादा इम्फेसाइज करना चाहिए और इनसे इम्फेसाइज कहाँ नहीं करना चाहिए वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट के लिए रागों को यूज किया जाता है। सो अभी बीच में एक हम लोग सब, अगर आप लोगों के पास ईयरफोन हो तो यू कैन यूज योर ईयरफोन सो यू कैन फील मोर बेटर। सो we'll just start with little chanting and you can try and meditate. I will start with little bit without rhythm and then slowly add the rhythm. Very few minutes I will take.
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशे न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे नैव मात्सर्यभावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् हे गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुरुते भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि धीश्रितदोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि शैलकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जटाटविगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलैर्लम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका धमद्दमद्दमद्दमन्निनादवद्दमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलविचिवल्लरी विराजमानमूर्ध्नि दगद् दगद् दगज्ज्वलल्ललाटपट्ट
पद पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंध संतरे मनो विनोद मेतुनी लता भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी विभर्तु भूत भर्तरी विभर्त भूत भर्तरी So this was a little bit. Very beautiful, Jarna Ben. Very beautiful. Thank you so much. ये चैंटिंग से कैसे आपको असर होता है उसका एक उदाहरण मुझे देना था, इसके लिए ये मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए। और अभी मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि आरोह अवरोह जब हमने कहा तो उसमें इंडियन म्यूजिक को हम ऐसे हम सब जानते हैं कि इसकी डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो इंसान के इमोशन से होते हैं। तो इमीडिएटली एक सुर बदलने से पूरा जो माहौल है वो कैसे बदलता है। जैसे आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल ऑफ भोपाली एंड शिवरंजनी। तो इसमें सारे के सारे सुर सेम ही बजते हैं, लाइक सारे ग प ध सा ध प ग रे सा। तो इसमें एक बार ग को कोमल कर दिया तो दूसरा राग बन जाते हैं। ये भोपाली सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा रे ध सा सा रे ग प ध प ग रे ग सा रे ध सा ग प ध सा ध प ग रे ग रे सा। इसी में जब हम कोमल कर दे सा रे ग प ग रे सा रे ध सा ग रे ग रे ग प ध प ग रे सा रे ध ग रे सा। देखिए इसमें कितना जल्दी से सब उसकी माहौल ही चेंज हो जाता है एक सुर की वजह से। So, इस तरह से जो रागों की जो कंपोजिशन है वो किस तरह से कंपोज किया है कि कौन सा सुर को किसके साथ और जोड़ के गाने में और वहाँ सस्टेन करने में, मतलब वहाँ रुकने से या तो वहाँ से जल्दी निकल जाने से क्या असर होता है, ये पूरा ध्यान रखे हुए हर एक रागों की जो कंपोजिशन है वो बना है। और वो हर एक राग में रस होते हैं, उसके एक इमोशनल एट्रीब्यूट होता है और उसके हिसाब से रागों को उपयोग करते हैं। और अभी मैं एक अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं तो हमने सोचा एक माता जी का स्तुति भी लेंगे। और ये राग तोड़ी में है। राग तोड़ी इज यूजफुल फॉर हाइपरटेंशन, जो बहुत कॉमनली हर एक घर में किसी न किसी को तो बीपी का प्रॉब्लम होती ही है।
तो ये बहुत ही अच्छा है फॉर हाइपरटेंशन। सुबह के टाइम पे गाया जाता है। और हर एक रागों का जो हम सुनाते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए मिनिमम टाइम इज ऑफ 25 मिनट्स 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स और मिनिमम 20-25 मिनट्स, तो उतना सुनना चाहिए। और जब आप सुनते हैं तो ईयरफोन हेडफोन लगा के सुनना चाहिए ताकि दूसरे साउंड आपके आपको सुनाई ना दे और आपको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि हम सब ये जानते हैं, और डॉक्टर गीता को तो कहने की जरूरत ही नहीं है, उनको वो तो इसी विषय में माहिर है। तो अपना जो ब्रेन है, थोड़ी देर कोई भी एक पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसी में जब हम एक्सपोज करते हैं तो उसको हम फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग रिस्पॉन्स बोलते हैं। सो इफ यू एक्सपोज योर ब्रेन to a certain frequency, your brain wave will follow the same frequency, and this is called brain wave entrainment or FFR. तो इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन को एक लेवल पे लेके जाता है, जो अलग अलग जो ब्रेन की लेवल है, जैसा बीटा, थीटा, अल्फा, डेल्टा, जो अलग अलग लेवल में जब हमारे ब्रेन वेव जब घूमता है तभी अलग अलग उसकी हमारे बॉडी को असर होता है और आपकी स्थिति और उसकी इम्पैक्ट आपकी बॉडी में अलग तरह से पड़ता है। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ब्रेन को कहाँ तक ले जाना है, किस स्थिति में लेना है, उसके हिसाब से सुर को जब हम यूज करते हैं तो रिदम के साथ या तो विदाउट रिदम, और किस प्रकार की सॉन्ग गाना चाहिए या तो बजाना चाहिए। तो ज्यादा करके तो जब हम गा के जब ट्रीटमेंट देते हैं तभी हम ज्यादा आकार, ओमकार और नोम तोम ऐसे जो लिरिक्स नहीं होते हैं वैसे शब्दों का, वैसे साउंड का यूज करते हैं। और बेस्ट थिंग इज टू लिसन टू एन इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट का वो भी अगर रिकॉर्डेड करके आप सुनते हैं तो रिकॉर्डेड सुन के लेने से क्या फायदा होता है कि आपको एक ही साउंड की जो क्वालिटी है वो मिलता है। तो साउंड अप एंड डाउन नहीं होता है। एक तो आपने एक बार आपकी जो कान को जो कंफर्ट लेवल है उसका लाउडनेस आपने सेट कर दिया तो आप उसी को मेंटेन करके टिल द एंड यू आर हियरिंग। एंड ऑल्सो बजाया हुआ जो म्यूजिक है वो हर बार वही बजेगा, हर बार अलग अलग नहीं बजेगा, जो रिकॉर्डेड है वो वही बजेगी। और साथ में जब इंस्ट्रूमेंट को एक बार बजा दिया और उसको रिकॉर्ड कर दिया तो उसके सुर जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होंगे। सो व्हाइल यू आर डूइंग इन अ लाइव सिंगिंग, जो वो लाइव सिंगिंग में ये सभी चीजों को इफेक्ट होने की चांसेस है। के लिए ज्यादा करके हम एडवाइस करते हैं आप रिकॉर्डेड जो चीजें हैं उसको ज्यादा यूज करें, और ईयरफोन और हेडफोन के साथ विद द रिलैक्स कंफर्टेबल position of your body. If you can lie down or sit in the chair and just be relaxed, so that is the best way to benefit. और प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार के बारे में कुछ बताएंगे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ राग और म्यूजिक इज बेस्ट फॉर देम ड्यूरिंग दिस वेरियस टाइम्स और ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ज्यादा करके जौनपुरी राग इज वेरी गुड इन द लेटर पार्ट ऑफ ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग रागों का कंपाइल सीरीज भी मिलते हैं जो अलग अलग महीने, जैसे 2 से 4 महीने में क्या सुनना चाहिए और फिर लेटर पार्ट में क्या सुनना। सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ, I think you will have to. You are now the host. I'm the host. Yeah. You can mute them. So how do you mute all? I think they'll have to mute all themselves, but they're on the side. You can. तमेज host बनो ने, तमेज करो ने। हाँ, I'll try. I made you the host, so better sharing. Yeah. So I'll try. Yeah. Now I have stopped my sharing, no? हाँ.
I'll try again to make me the host again. No, no. If I need, I'll tell you. Okay. So I'm singing a bhajan based on Tori Rag. दस सेकंड 3 बार ऐसा करते रहेंगे हम बाद में You will have to make me the host. Make me the host again. You'll have to right click on my thing and make me the host again. हम वॉकिंग Where? On my this thing screen, right click and पेंक्रियास का पॉइंट लेंगे 10 सेकंड 3 बार हम वॉकिंग करेंगे I would again, I will have to request everybody to mute themselves. हम But लीवर you का can, पॉइंट देखेंगे You just tell me how do I mute all? on the you minimize exit full screen, and on side all the participants will come. Or there you say you get an option of mute all. No, इसमें invite ही आ रहा है मुझे participant. Exit full screen. हाँ, yeah. On the side there are all Yeah. Okay, you have to unmute yourself when you want to speak, right? लो सांभळो तुरी राग આમ ફરી નાખ અરે મારા વાળ ફેંદ દે આમ ખેંચીને હા એમ કરીને કર આ ડાબી બાજુ આવે છે આમ गम्यति पुण्ये भवारण्यभीतं च मां पाहि भद्रे नमस्ते 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 भवानी रक्षा करो जगदम्बा भवानी रक्षा करो जगदम्बा भवानी निश दिन रटो अम्बा निश दिन रटो अम्बा रक्षा करो जगदम्बा भवानी वर्ण विवर्ण विरमे वाणी वर्ण विवर्ण विरमे वाणी चौदह भुवन ने हे महारानी चौदह भुवन ने हे महारानी
निश दिन रटो अम्बा रक्षा करो जगदम्बा भवानी रक्षा करो। अंतर्मातु अंतर्यामी अंतर्मातु अंतर्यामी विश्वस्वरूपे विश्वसमानि विश्वस्वरूपे विश्वसमानि खम्मा तमने मारी घड़ी खम्मा 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 रक्षा करो जगदम्बा भवानी रक्षा करो जगदम्बा भवानी रक्षा करो जगदम्बा भवानी। So this was Rag Todi, Very beautiful. Very beautiful. Gurjari Todi. इसके बाद राग यमन का थोड़ा सा जो भी सॉन्ग्स है मैं थोड़ी थोड़ी गाती हूँ। राग यमन इज वेरी गुड फॉर डिप्रेशन, इससे मूड एलिवेट होता है और काफी सारे लोगों ने इसको उपयोग किया है और उसका असर भी हुआ है। जिनको राग यमन के बारे में नहीं मालूम हो उसको कौन कौन सा सॉन्ग जो कॉमन है वो मैं बता रही हूँ। ऐसे तो हम हमेशा कहते हैं कि आपको जो फिल्मी सॉन्ग्स है वगैरह उसको सुन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर भी जिनको प्रॉब्लम है ही नहीं और दे जस्ट वांट टू यू नो एंजॉय एंड गेट स्ट्रेस फ्री होना है, ऐसा होगा तो आप ये राग सुन सकते हैं, इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। निरे गा रे निरे सा निरे निरे गा रे मा ग पा रे ग रे निरे निरे गा सा आ आ कृष्ण नाम कह लीजिए। एक ही ताल में 2-3 सॉन्ग ले रही हूँ, सो रिदम का भी आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। राग कहरवा, ताल कहरवा में कृष्ण नाम कह लीजिए रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए, कृष्ण नाम कह लीजिए रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु के वचन अटल कर मानहि, गुरु के वचन अटल कर मानहि, संत समागम कीजिए रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए, कृष्ण नाम कह लीजिए।
पढ़िए गुणिए भक्ति भागवत, पढ़िए गुणिए भक्ति भागवत, और कहाँ कर लीजिए, और कहाँ कर लीजिए। कृष्ण नाम बिन जन्म बाद की, बिरथा क्यों कर लीजिए रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तिराए मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तिराए मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जागर दिल दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मुहाबत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। So all these are based on Rag Yaman, and there are many more. So this is very good for boosting your mood. And this is an evening rag. Evening out around 7:30 is the time for Rag Yaman. Actually, in Indian music, हर एक राग के गाने का जो समय है बहुत बारीकाई से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, एंड दैट एक्चुअली रिलेट्स टू आवर बॉडी। बॉडी की जो क्लॉक है उससे भी काफी कुछ रिलेशन है। इसके लिए पुराने वैदिक पीरियड में आयुर्वेदिक साइंस जो इंडिया का प्राचीन मेडिसिन है, उसमें म्यूजिक को गांधर्व वेद कहते हैं। और उस जमाने से लेके अब तक आयुर्वेदिक में म्यूजिक को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, ये सभी चीजों में संगीत का और चैंटिंग की बहुत, आपको देखा होगा कि योगा में भी आप जाते तो म्यूजिक हमेशा उसमें इंक्लूड होते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी जरिए से। तो म्यूजिक हैज अ लॉट ऑफ टू डू विद आवर बॉडी एंड माइंड। तो
टाइमिंग जो रागों की टाइमिंग जो है उसमें कौन सा राग में कौन सा सुर, तो सुबह के राग में आपको रे कोमल जैसे जो राग है स्वर है उसकी प्रधानता ज्यादा मिलेगा, और इवनिंग राग में ज्यादा करके शुद्ध स्वर और तीव्र स्वर की यूसेस, और मॉर्निंग के राग में इवन इफ यू हैव अ तीव्र स्वर यू विल हैव मोर ऑफ कोमल, रे कोमल ग कोमल, जैसे अभी मैंने थोड़ी गाया उसमें मत तीव्र था लेकिन रे और ध को ग को कोमल किया है। तो इस तरह से रे कोमल इज वेरी वेरी सूदिंग, और सुबह की जो हमारे बॉडी के टेम्परामेंट जो होते हैं उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। इसके लिए आहिर भैरव वगैरह जो है वो सुबह अगर आप सुनते हैं तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव योर स्ट्रेस। तो इसी तरह से अलग अलग रागों का टाइम अलग अलग टाइम पे गाने के लिए, और अभी के जमाने में तो हम लोग इतना फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब हम छोटे थे तभी भी हमने जब भी हम कॉन्सर्ट सुनते थे तो हमेशा उसी के टाइमिंग में गाए जाने वाले रागों को ही, अभी सुबह जाएंगे तो आपको सुबह का ही राग सुनने को मिलेगा, दोपहर को होगा तो दोपहर के राग को सुनने मिलेंगे, रात को तो रात का राग सुनने, और हमेशा एंड में भैरवी से एंड होते हैं। तो इस तरह से जो प्राचीन काल से जो पद्धति चलते आ रहे हैं उसके पीछे भी बहुत लॉजिक है। और हमारे जो सुबह के टाइम पे हमारे बॉडी में किस तरह की दोष, जैसे हम दोष बोलते हैं, कफ पित्त वात बोलते हैं, तो उसको उसका जो प्रधानता है अलग अलग टाइम पे वो डोमिनेट होता है, तो उसको कैसे डील करना के कारण स्वारों की इम्पोर्टेंस। अभी हाँ, अभी ठीक हो गया। सो कफ जो है वो दोपहर सुबह के टाइम में ये 3 बार चलता है कि सुबह दोपहर और शाम। तो सुबह को कफ प्रकृति ज्यादा रहता है, डोमिनेशन रहता है, आफ्टरनून को पित्त का ज्यादा प्रकृति रहता है, और शाम को वात। तो इसी तरह से रात को भी ये साइकिल चलती रहती है। तो इसके लिए आपको जो भी राग मिलते हैं वो इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ सुर यू विल फाइंड लाइक दिस। सो इन द और उसके साथ साथ इंडियन क्लासिकल में ये भी दिया कि संधि प्रकाश राग, जब भी आपकी जो सुबह एकदम डॉन के टाइम जो है उसमें जो गाया जाता है उसको संधि प्रकाश बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं। तो वो टाइम पे हमारी स्थिति क्या होती है, जैसे साइंस में भी बोलते हैं कि आपकी प्यूटिटरी ग्लैंड जो है ब्रह्म मुहूर्त में वो जागृत होता है, उस टाइम पे आपके हार्मोन की जो सिक्रेशंस वगैरह जो है उसकी ज्यादा काम होता है। तो इसके लिए काफी सारे लोग कहते हैं कि उसी टाइम पे उठ के आपको मेडिटेट करना चाहिए, एंड यू शुड स्टार्ट योर वर्क इन द मॉर्निंग एंड यू शुड स्टडी सो दैट यू कैन रिटेन योर मेमोरी बेटर। सो दीज आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, कि संगीत में भी हमेशा हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग को प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसका सिर्फ गाने को याद करने के भी छोड़ के आपकी हेल्थ में उसका काफी असर होता है। सो और कोई हमको ये भी पूछते हैं हमें गाना चाहिए या सुनना चाहिए जो हमारे प्रैक्टिस के लिए अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन अगर आपका सुर अच्छा है तो आपको गाना चाहिए। गाने गाने से आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, और जो खुद गा के जो खुद को खुद से कनेक्ट कर पाते हैं वो किसी और के थ्रू तो नहीं होता। इसके लिए खुद जब गाए या तो बजाए तो बहुत ही अच्छा है। और किसी को क्योंकि हर एक को भगवान ने इक्वल क्वालिटी या तो क्वांटिटी में गिफ्ट नहीं किए हैं, तो कोई संगीत को बहुत जल्दी से कनेक्ट कर पाते हैं, कोई ज्यादा जल्दी से नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। सो दोस्त कैन जस्ट गो ऑन लिसनिंग टू द things they like, and also for the treatment I will not suggest कि आपको जो अच्छा लगता है वो सुनो, नहीं बोलेंगे, आपको जो सुनना चाहिए वही सुनना चाहिए। it is like a medicine, so you cannot decide what medicine you want to have or not. so इस तरह से जब आपको एडवाइस किया जाता है तो जो एडवाइस है उसको फॉलो करना चाहिए। एंड बेनिफिट कितने टाइम में पता चलेगा, दिस इज वन क्वेश्चन एवरीबडी आस्क।
सो कोई भी ट्रीटमेंट आप करते हैं तो डॉक्टर्स भी जब दवा देते तो 3 वीक्स मिनिमम आपको लेना चाहिए। वो उसमें प्रमाण थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा। आप शुरुआत में इतना टेबलेट ले लो, बाद में इतना रिड्यूस करो या तो व्हाटएवर। तो इसी तरह से तो आप कम से कम आप 3 वीक्स से लेके 6 मंथ्स तक जब आप रेगुलरली आप रिलीजियसली ये चीज़ों को फॉलो करते हैं, तब आप में अपने आप में एक परिवर्तन जो है आपको खुद को महसूस होगा। सो और गाने वाले भी ऐसा, हम अभी मैंने कहा कि आप अगर सुर में गाते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन आप किस तरह से वो सुर को गा रहे हैं, ओनली सुपरफिशियल एंजॉयमेंट के लिए गाते हैं या यू आर रियली एबल टू कनेक्ट विद योरसेल्फ, तो उसमें भी फर्क पड़ता है। नहीं तो कितने लोग बोलते हैं हम तो कितने साल से गाते हैं फिर भी हमें ये होता है। पर उसके साथ साथ एज आई सेड यू हैव टू ब्रिंग अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। Not only by singing you are not going to be happy person. Any other factors will also affect you. So slowly as it helps you to get more spiritual, और जो ना कि आपकी शुद्धि होती है, तो वो शुद्धता जब आप उसको खुद में ला सकते हैं या तो उसको आप पा सकते हैं, तो definitely music will help to enhance your living and also retain health in a better way. So I think the time is up. Yeah. If we can take some questions, there are some very nice comments also, and somebody's asked about drums, using drums during pregnancy. So, do you have any idea about that? Yeah, rhythm can be used. ऐसा नहीं है कि नहीं यूज Like कर tabla during pregnancy. तबला, और जैसे आप बॉल्स करते हैं, बॉल्स हाँ. बेल की आवाज है, जो सूदिंग जो साउंड है वो बहुत ही अच्छा होता है। वो सभी यूज कर सकते हैं। इफ यू आर लिसनिंग टू सर्टेन म्यूजिक विद द रिदम, देयर इज नो हार्म। What about insomnia? That's also a very common problem. So, any particular rag, or one should listen in the night before going to sleep, or something soothing? Yes. So I can share with you some of the ragas which are prescribed for certain. See, rag Tori is said is hypertension, and for arthritis बहुत सारे common problem है। arthritis ladies में तो बहुत ही ज़्यादा menopause के बाद arthritis बहुत लोगों को होता है। तो हिंडोन rag is very good for arthritis, and the rag Puriya Dhanashri is again good for हाँ मैं diabetic. बंद कर दूं, बंद कर दूं। So I think Meeta Ben will have to make me the host again because she. I'm doing all mute all. I don't know how it is going. देखिए मैंने I have shared. Can you see? So these are the ragas which we have already done lot of research and ki used to people and benefited by many of the patients. So बागेश्वरी राग जो है वो इंसोम्निया के लिए बहुत अच्छा है। दरबारी कनारा is good for migraine as well as insomnia. These are all night ragas. Yaman and Ahir Bhairav is depression and stress relief. इसके लिए अच्छा है. So I hope now I can stop sharing. Everybody, if you want to take a photo, you can take it. Yeah, so I'm stopping to share. Okay. I can't hear you. आपको unmute करना है. आपका ही unmute करना है. No. You unmute yourself. Okay, now. Any more questions? You can unmute. Yeah, I got it. Some very nice comments, Janabin. All very
Everybody loved it and mesmerizing, मजा आ गया. Spiritual enhancement के लिए कोई राग होता है? Somebody has asked. Spiritual enhancement के लिए. So I will sing Bhairavi Rag. Bhairavi Rag is very good to meditate. Okay, and also last में गाया जाता है. Any particular reason कि ये भैरवी end में क्यों गाया जाता है? ये प्रथा चल रही है प्रथा चल रही है. अर्ली मॉर्निंग रागा. एक्चुअली अर्लियर इन एंशिएंट टाइम्स क्या होता था कि कॉन्सर्ट शुरू होते थे शाम को and it goes till the early morning. तो इस तरह से भैरवी गा के, ललित राग, ये भैरवी ये सब गा के सुबह होने तक कॉन्सर्ट चलता थे. तो उस हिसाब से भैरवी यूज्ड टू एंड कॉन्सर्ट. और इट इज क्वाइट मेडिटेटिव राग एंड सूदिंग राग. तो आप जब कॉन्सर्ट खत्म करके जाते हो तो एक मन में वो शांति भी लेके जाते हो. So that's one thing I feel myself. Yeah, long lasting shanti. So I'm just ending with Okay. and ये भी एक माता जी का है. अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो I have said it all. सफेद एक स्फटिकर चित पीठे रम्य कैलाश स्फटिकर चित पीठे रम्य कैलाश शृंगे विकज कमल पत्रे अर्चयन्ति कर धृत घनवाट्या कर धृत घनवाट्या पीतवर्णा
सुख विभिरिया मुक्ता भैरवी भैरवास्त्रे भैरवी भैरवास्त्रे भैरवी भैरवास्त्रे। आज एक्चुअली मुझे ये लैपटॉप हैंडल करना था, इसके लिए हमारे कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है, पर आई वुड लाइक टू थैंक माय हस्बैंड विजय टू accompany me with the tabla, and I'm so sorry कि because I have to keep my laptop near me and the camera can only cover me. Okay. मैं धरूं तिहारो ध्यान, मैं धरूं तिहारो ध्यान, मैं धरूं तिहारो ध्यान, मैं धरूं तिहारो ध्यान। ध्यान मुझे दे है काली, ज्ञान मोहे दीजे है काली, मैं धरूं तिहारो ध्यान। मुख में बीड़ा पान बिराजे, मुख में बीड़ा पान बिराजे, मुख सोहे लाली, मुख सोहे लाली, मुख में बीड़ा पान बिराजे, मुख सोहे लाली, नाकन में नकवे सर सोहे, नाकन में नकवे सर सोहे, कर्ण फूल वाली, मैं धरूं तिहारो ध्यान, मैं धरूं तिहारो ध्यान। ऐसा तुम्हारा रूप भयंकर, ऐसा तुम्हारा रूप भयंकर, श्याम बदन वाली, श्याम बदन वाली, ऐसा तुम्हारा रूप भयंकर, श्याम बदन वाली, काली राम कहे सुन गंगा, काली राम कहे सुन गंगा, कलकत्ते वाली, मैं धरूं तिहारो ध्यान, मैं धरूं तिहारो ध्यान, मैं धरूं तिहारो ध्यान। ज्ञान मोहे दीजे है काली, ज्ञान मुझे दीजे है काली, मैं धरूं तिहारो ध्यान, मैं धरूं तिहारो ध्यान। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव
माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मैं धरूं तिहारो ध्यान, मैं धरूं तिहारो ध्यान। ओम हसतो सद्गमये, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति। Thank you so much. Thank you. Thank you. It was wonderful. मजा आ गया रियली। कहाँ 1 घंटा अभी खत्म, 1.5 घंटा पता नहीं चला। Thank you so much for coming and gracing this occasion. And in Navratri के टाइम I'm sure everyone agrees with me. So we will end the session, and thank you all for joining and making this so special. Thank you. Thank you all viewers. Thank you. Thank you. Very Thank nice. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jharna ji. Thank you. Bye bye. Thank you. See you. Thank you, Jana. Good. Abhi. Thank you, Jharna ma'am. Thanks a It was a lot. wonderful program. Thank you, Jana ma'am. Sorry. Thank you. Thank you, Jharna ji. Thank you.